Today we will start paper 2. Okay. So first paper हमने finish किया and second paper is about therapeutic nutrition. That means किस तरह से न्यूट्रिशन ट्रीट करती है कोई डिजीज को. दिस इज थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एज अ थेरेपी. So we will study RDI in this, changes कैसे कर सकते हैं RDI में, and balanced diet. It is so much similar to paper 1. काफ़ी चीज़ मैं इसकी भी उसमें थोड़ी बता देती हूँ तो आपको काफ़ी इजी लगेगा. पेपर 1 तो काफ़ी अच्छे से किया हमने. So what is this therapeutic nutrition? It is in the last units we learn about nutrient, है ना. सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट हमने पढ़े. And about nutrient, macro, micronutrient and fibers, water, ये सब पढ़े हमने और उनके vital roles. And in this unit we shall learn as a how much of each nutrient we would need to maintain optimum health. कितना लगेगा. So ये कौन डिसाइड करता है? ये ICMR डिसाइड करता है कि एक इंडिविजुअल के लिए जो स्पेसिफिक एक बॉडी वेट रखता है, एडिशनली कोई चेंज होता है तो क्या न्यूट्रिशन चेंजेस होंगे, ये सब डिसाइड करता है ICMR. ओके. So recommended dietary intake of individual varies according to age, sex and physical and medical condition. इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कितना इंटेक होना चाहिए. So in order to plan a balanced diet, it is not possible for us to count the calories and weight of each nutrient every day. Hence, with lot of research, experts have found out the kind of food and their nutrient values which we need to take in our daily diet. They have translated the calories and amount of nutrients into portions so that it is easy for us to plan balanced meal. So एक portions बता दिया गया है, इसको easy होगा. हर एक nutrient को हम everyday count नहीं कर सकते, तो एक average बना दिया गया. So this is also known as the food guide, whereas food are grouped according to nutrient they provide. So like protective food and all. This guide helps in food selection and ensure good nutrition on a daily basis. Menu planning is a creative activity and generally requires some intelligent thinking and manipulation. Manipulation क्यों? क्योंकि अभी बता दिया बुक में कि आपको इतना इतना देना है, मगर हर कोई उसको फॉलो नहीं कर सकता. आपको पर्सन टू पर्सन उसको मैनिपुलेट करना है, चेंजेस लाने हैं उसमें. ओके. उसका लाइफस्टाइल कैसा है, बोल दिया है कि आपको 7 o'clock डिनर करना एक आइडियल है, मगर अगर पेशेंट सो रहा है, उसका ऑफिस वर्क ऐसा है, उसको 12 बजे सोना पड़ रहा है, 11 बजे सोना पड़ रहा है, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे. 1 आवर हम डिले अगर कर सकते हैं तो उसको डिले करेंगे ताकि वो जो ओवरनाइट फास्ट है तो वो ठीक ठाक रहे. सो this is because apart from the influence of age, sex of an individual, her physical and psychological condition, level of physical activity also affect the requirement of nutrition to the body. Climatic condition also affect the nutrient value and timing of the meal intake. Growth and pathological stress plays an important role in nutrient demand of the body. जहाँ पे सनसेट लेट होता है तो जनरली लोग वहाँ लेट डिनर करते हैं, तो हम उस हिसाब से वेदर कंडीशन एंड ऑल, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ऑल, इन पे भी डिपेंड करता है. So
All factors have to be taken into consideration when planning a menu for an individual. Unlike balanced diet where foods are grouped for easy usage, meal planning involves the application of dietary knowledge of nutrient. मील प्लानिंग क्या हो गया? लाइक सीरियल आपने बोल दिया अनाज खाना है, अभी मील में हम क्या लिखेंगे? मील प्लानिंग के टाइम हम लिखेंगे क्या अनाज खाना है उनको, बीट का दलिया खाना है क्या, या फिर राइस खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, कोई मिलेट खा सकते हैं, या फिर कोई म्यूसली खा सकते हैं। तो दिस कम्स इन मेन्यू प्लानिंग। ठीक है, आप बोल देंगे इतना कैलोरीज खाना है आपको, इतना प्रोटीन खाना है, तो वैसे नहीं होगा। ओके, सो there were several reasons for setting up the RDI long back in 1936. It was found that the effect of deficient diet, पहले डिफिशियंट हुआ करती थी, बहुत प्रोटीन लैकिंग डाइट हुआ करती थी लोगों की, वेयर ड्रास्टिक, सो कंट्रीज इन द League of Nations set up the committee to recommended daily dietary allowances for each of the known nutrient. तो फिर एक बना दिया गया कि कितना आपको recommended है, लेना ही लेना है, एक minimum requirement. Rather, during the Second World War, many recruits were rejected from the army as they were underweight. The government in various countries were shocked with the rate of rejection and anxious to change this situation. They formed an expert committee to set up recommended dietary allowances to guide people to meet their nutritional need and their daily requirement of food. सो बिकॉज जो आर्मी पर्सन होते थे वो काफ़ी अंडरवेट होते थे, अकॉर्डिंग टू दैट फिक्स किया गया था जो वेट। तो फिर उन्होंने रिजेक्ट किया कि हम इतना वेट नहीं मेंटेन कर सकते। उसके बाद एक कमिटी फॉर्म हुई, एक्सपर्ट की कमिटी, जो जिसे बोला गया जिसके अंदर अलाउ किया गया डाइटरी अलाउंसेस। So thus the RDA were set up for various countries between 1940 and 1944. Okay. Over the years, these recommendations had to be revised based on newer research finding. हमेशा research होती रहती हैं हर year different countries में, फिर उसको consideration किया जाता है अगर उसका सही result है तो, and उसके हिसाब से आरडीए में चेंजेस किए जाते हैं। In India, major revision were made in 1958, 68 and 81. तो इस टाइम में बहुत बड़े चेंजेस किए गए, रिवाइज किया गया, इनटेक को चेंजेस किए गए इंडियंस के लिए। द नेम हैज बीन रिवाइज्ड, emphasize intake. These value are not final and will be revised as and when there are new research finding. When RDA were laid down for India and provision for adequate amount of nutrient to the body was thought of, then it was necessary to express the age of body diminution of person. This was to ensure that all person would meet their nutrient requirements. सबको जो requirement है वो पूरी करनी है। Therefore, one prospective person was chosen whose age and body size was defined. तो एक body size लिया गया and उसी के perspective में comparison किया गया कि इससे कम होगा तो underweight, इससे ज़्यादा होगा तो overweight होगा। The reference man is of age 20 to 39 years, weight approximately 55 kg, where reference woman age is 20 to 39 years, weight is 45 kg. तो 20 से 40 के पहले तक की उम्र जो होती है, 20 से 39 वेट, तो उनकी अप्रॉक्सीमेटली बताई गई 55 और फीमेल के लिए बताई गई 45। यहाँ पे वेट हाइट मेंशन नहीं है, इस हिसाब से इट में चेंज।
So the recommended dietary intake are given for energy, protein, mineral, vitamins, दोनों टाइप के विटामिन, वाटर एंड फैट सॉल्यूबल, इनको रिकमेंड किया गया। फैट के लिए कोई रिकमेंडेशन पहले नहीं दिया गया बिकॉज फैट लोग ऐसे ही खा ही लेते हैं, मतलब डिफिशिएंट नहीं होते थे। सो धीरे धीरे चीजें एड ऑन हुई। So our body needs only two nutrient in large amount, energy in kilocalories and protein in grams. के बाकी सब थोड़ा थोड़े ही चाहिए, फैट भी लिमिटेड ग्राम में चाहिए होता है, 25 to 30 ग्राम। बाकी जो प्रोटीन है वो ज़्यादा चाहिए होती है, अराउंड 60, एंड एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट है वो चाहिए होता है ज़्यादा। सो ये दो ही हैं जो ज़्यादा चाहिए, एनर्जी एंड प्रोटीन। प्रोटीन क्योंकि मसल फॉर्मेशन करेगा, सेल्स फॉर्मेशन करेगा, और एनर्जी दिन भर का काम करने के लिए। So RDA for energy are with reference to average of reference weight, although there is normally no need of adjustment of group of different weights. There is evidence that average energy intake are now lower, perhaps of relation to our reduced energy expenditure. तो जितना reduce energy expenditure. So प्रोटीन के बारे में दैट इज प्रेजेंट RDI for protein represent 10% of energy requirement for the pregnant woman. 60 gram of protein provides 240 kilocalories. कैसे पता लगेगा ये? जितना भी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है multiply by 4. Okay, so which is 10% of her total requirement of 2400 kilocalories. तो जितना भी टोटल किलो कैलोरीज है उसका 10% जो है वो प्रोटीन से आना चाहिए। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। So our need for protein is about 1 gram per kg of body weight. Therefore, the protein RDI for the reference man is 55 gram and the reference woman 45 gram. Should, however, be noted that if energy requirements are not fully met, at the same time, that protein which is eaten will be utilized more to provide needed energy than grow up tissue repair. तो मतलब अगर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कम ली गई है तो फिर क्या होगा? प्रोटीन बॉडी यूज करने लगेगी एनर्जी के लिए। तो जनरली ऐसा नहीं होता कि लोग एनर्जी कम लेते हैं। ये बहुत ही बिलो जो बीपीएल जो होते हैं, पॉवर्टी लेवल, उनके केस में ही होता है। वो भी एनर्जी सफिशिएंट ले लेते हैं, प्रोटीन ही लैकिंग होता है वहाँ पे भी जनरली। दे टुक ओनली राइस एंड पोटैटोस। सो वहाँ पे एनर्जी लैकिंग बहुत कम होता है। जो बहुत लीन एंड थिन हो गए उसी केस में ऐसा हो सकता है। तो ऐसा जनरली नहीं होता। कुछ मॉडल्स होते हैं जो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उस केस में वो प्रोटीन जो ले रहे होते हैं वो एनर्जी का काम करने लगता है। तो वो भी गलत है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे और वो एनर्जी की तरह यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा? लोड बढ़ेगा किडनी पे। तो हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोटीन लेना है। सो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, आप जनरली फूड सोर्सेज से कभी भी उतना एक्सेस नहीं होता प्रोटीन। जब एक्स्ट्रा प्रोटीन जनरली जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उसी से होता है मोस्टली, क्योंकि जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, कोई अगर 60 kg का इंसान है तो 60 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए भी काफ़ी सारा प्रोटीन सोर्सेस लेना पड़ता है। तो अगर कोई सोचे कि हम इतना प्रोटीन खा रहे हैं फूड से सोर्सेस से तो मेरा किडनी खराब होगा, ऐसा नहीं है। तो आप आराम से ले सकते हैं, लेना चाहिए तीनों टाइम कोई प्रोटीन सोर्स। ठीक है, जब किसी का ऑलरेडी पहले से किडनी का कोई इशू है, सीकेडी है, या फिर प्रेशर की वजह से किडनी का फंक्शन खराब हुआ है, तो उस केस में सीकेडी होने के बाद हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं। प्रोटीन तभी भी उनको उतना ही चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पाते बिकॉज किडनी पे लोड बढ़ेगा। तो हम देते हैं प्रोटीन, बट ऐसे प्रोटीन देते हैं जो वेस्ट कम बनाए, ठीक है, जिससे किडनी पे बुरा इफेक्ट कम हो।
तो ऐसा नहीं है कि रीनल पेशेंट को प्रोटीन नहीं चाहिए, उसको भी बॉडी सेल मेंटेन करने के लिए चाहिए, लेकिन क्योंकि वो वेस्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा, इसीलिए हम कट ऑफ करते हैं और ऐसे प्रोटीन्स देते हैं जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वेस्ट कम बनाते हैं. Then fat and carbohydrate. There appears to be no absolute dietary requirement for either fat or carbohydrate except for small amount of essential fatty acids and some carbohydrate. 50 to 100 gram per day are necessary to prevent the undesirable effect that result from extremely high fat diet. तो हमें कई बार जो कीटो डाइट देते हैं इन एपिलेप्सी, उसमें हम क्या करते हैं, हमें फैट के थ्रू ज़्यादा देना होता है. दैट इज स्पेशल कंडीशन, वो बैलेंस डाइट से रिलेटेड नहीं है. उस केस में हमें एक्सट्रीमली हाई फैट डाइट देनी होती है. तो यहाँ पे मेंशन है कि अगर एक्सट्रीमली हाई फैट डाइट भी दे रहे हैं तो आप 50 to 100 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट दीजिए. उसमें मैं जो देती हूँ वो ऐसा ही रहता है, 80 ग्राम 50 ग्राम 80 ग्राम रहता है. लेकिन जनरली जो हम खा रहे होते हैं एवरीडे कार्बोहाइड्रेट वो 200 ग्राम 300 ग्राम ऐसा रहता है. लेकिन उस केस में हम बहुत रिस्ट्रिक्ट करके कार्बोहाइड्रेट देते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट देने से शुगर फॉर्म होगा बॉडी में एंड वो फिर ट्रिगर करता है नर्वस सिस्टम को और फिर उनको झटके आते हैं, जो ट्रिमर्स आते हैं और मिर्गी बोलते हैं और अटैक्स बोलते हैं. तो उस तरह की चीज़ें होती हैं. तो उनको शुगर बॉडी में उनके नहीं बनना चाहिए इन फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए. तो उनके केस में हम फैट के सोर्स से उनकी बॉडी को एनर्जी देते हैं. So, however, in contrast to the recommendation for protein, minerals, and vitamins, which are designed to ensure that the intake by different groups of population are high enough for high health, a number of bodies in developed countries have suggested dietary guidelines to restrict intake of fat. So sugar and alcohol. This is because there is growing concern that some individuals are obtaining too much of these nutrients and not enough dietary fiber. Dietary fiber कम होने से gut health खराब होगी, तो that is not good for health. Why government are doing so much about nutrition and health? Because अगर किसी का हेल्थ खराब होगा तो उनके सिटीजन का खराब होगा, तो एक बैड इकोनॉमी हो सकती है. तो दैट्स व्हाई दे कंसर्न अबाउट देयर सिटीजन्स. एंड कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो लोगों के लिए दिया जाता है. So calcium and iron both recommendation allow for the limited absorption of these nutrients from the diet. तो ये भी लिमिटेड मिलता है कैल्शियम एंड आयरन. So कैल्शियम के लिए आप मिल्क सोर्स आर वेरी गुड फॉर कैल्शियम एंड आयरन आपको मिल जाएगा. Non-veg are good source of iron, except that leafy vegetable are very good source of iron. So niacin and vitamin A, the intake recommended allow. And one more thing, iron एक लोटस स्टेम होता है, कमल डंडी बोलते हैं उसको, हर जगह शायद अवेलेबल नहीं होता, तो दैट इज हाईली रिच इन आयरन. फिर आपके सहजन के पत्ते, ड्रमस्टिक लीव्स, they are also very rich in iron. तो ये सब चीज़ें, कड़ी पत्ता, इनको आप चटनीज में ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो रिच इन आयरन. So niacin and vitamin A, the intake of recommended allow of the likely contribution made by tryptophan and carotenosteroid are preformed nicotinic acid and retinol intake respectively.
So niacin and vitamin A are uh, we can store in our body also. हम एक्सेस अमाउंट में सीजन में मैंगोज खा के हमें बॉडी में स्टोर कर सकता है और हम बाकी जब हमें कभी डिफिशियंसी हुआ तो उसको उस टाइम में बॉडी यूज कर लेगा. Vitamin C. This is water soluble vitamin. There are different opinion as to the quality of vitamin C required for health. It is generally agreed that 10 mg daily with not only prevent but also cure scurvy. तो आपको डेली खाना पड़ेगा विटामिन सी. आपको गुआवा से, आंवला से, नींबू से बहुत आसानी से मिल जाएगा. Mango is also rich in vitamin C, जबकि वो खट्टा नहीं होता है फिर भी it is rich in vitamin C. The recommended intake of 30 mg is thought to provide a reasonable safety margin. There is no nutritional advantage from enormously higher intake, although there may some pharmacological action. So vitamin D next is vitamin D. It is nowadays it is very common. So like 70% to 80%, we can say 85% are deficient in vitamin D. वो test come for test और like जो health checkup कराते हैं तो उनमें 85% are deficient in vitamin D. Because we don't go outside so much. हम हमेशा इंडोर में ही रहते हैं. It is not possible to make firm estimate of dietary need because most of our requirements are met by vitamin D. But it is very available and outside from our house. तो हमें तो इसको ज़रूर लेना चाहिए. From the action of sunlight on the substance present in the skin. The amount recommended may be considered as a safety measure of those who are little exposed to sunlight. Excessive intake of many of mineral can be harmful. तो ज़्यादा इंटेक भी हार्मफुल है. तो ज़्यादा इंटेक जनरली आपको सन से नहीं होगा या कोई भी फूड से नहीं होगा. जनरली ये मेडिसिन जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उससे हो सकता है अगर खुद से ले रहे हैं बिना किसी रिकमेंडेशन के. सो क्या होगा एक्सेस लेने से विटामिन ए विटामिन डी लीवर में एक्यूमुलेट हो जाएगा क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है. तो ये दोनों लीवर में जाके जमा हो जाएंगे. तो इसलिए और सच इनटेक आर अनलाइकली टू अराइज फ्रॉम food but may result from excess use of mineral and vitamin supplements. Thus, when RDI are expressed in daily terms, it is not necessary for the diet to contain these quantities every day. So हम एवरी डे के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं कि हमने रोज़ खाया कि नहीं. विटामिन सी में ज़रूर मेंशन रहता है, बी में मेंशन रहता है पर डे के हिसाब से. So it is sufficient if the requirements are met over a period of, let us say, a week. So changes in RDI with age and activity कैसे change होता है. 3 टाइप के ग्रुप्स हैं. वन इज सेडेंटरी वर्कर, सेकंड इज मॉडरेट वर्कर, थर्ड इज हैवी वर्कर. तो हम इन तीनों में इसको डिवाइड करते हैं कि कितनी एनर्जी लगेगी. ओके तो सेडेंटरी वर्कर जो दिन भर बैठ के काम कर रहे होते हैं एंड मॉडरेट वर्कर जो मूवमेंट जो चल फिर रहे होते हैं जैसे कि टीचर्स हो गए या फिर कंडक्टर्स हो गए. इनको हम मॉडरेट वर्कर में लेते हैं जो थोड़ा सा मसल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं. एंड थर्ड इज हेवी वर्कर जो लेबर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मसल एक्टिविटी बॉडी मसल मूव्स करते हैं. रिक्शा पुलर्स होते हैं, लोडर्स होते हैं. तो इनको काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है. Sportsman also comes in heavy worker. They most of the time 7 to 8 hour are they are in fields
तो इनको भी हम हेवी वर्कर में कंसीडर करेंगे, तो वहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। इवन चेस प्लेयर आल्सो कम इन हेवी वर्कर, उनका मेंटल एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस से भी एनर्जी लॉस होता है, तो हम उनके केस में भी एनर्जी एज अ हेवी वर्कर कंसीडर करेंगे। टेबल टेनिस ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। जनरली टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड लॉन्ग टेनिस ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं, तो उनकी कैलोरीज का काफ़ी ध्यान रखना होता है, प्रोटीन एंड कैलोरीज का। मसल टीयर उनके होते रहते हैं, कैल्शियम का ध्यान रखना होता है। जो भी स्पोर्ट्स में है बच्चे या फिर जो एडल्ट्स हैं, तो उनका कैल्शियम, प्रोटीन एंड एनर्जी, इन तीनों पे बहुत ध्यान देना है। ये डिफिशियंसी इन तीनों की ज़्यादा रहती है इन केसेस में। फैट जितना चाहिए उससे कई बार ज़्यादा जाता है या नॉर्मल जाता है, तो फैट का बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। ये तीन चीज़ों में ध्यान देना है कि ये जा रहा है कि नहीं। सो नेक्स्ट कंडीशन इज प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो इस केस में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है नॉर्मल फीमेल से प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में। So beside age and activity, there are an increase in need of nutrient in condition like pregnancy and lactation. We can see that in the RDI, जो recommended dietary intake है, there are two terms, RDI and RDA. RDA is allowances, कितना WHO ने अलाउ किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने, NIN ने अलाउ किया है। एंड सेकेंड टर्म इज RDI, कितना इनटेक कर रहे हैं। ओके, as we are aware, more than 3/4 of the age of the fetus occur in the second half of pregnancy. So fetus is a term which is for baby in the uh, अंडर द लाइक प्रेग्नेंट वुमेन, पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो उसको फीटस बोलते हैं। उस टाइम उसको बेबी या दूसरा वर्ड नहीं बोलते। ओके, उस टाइम वो फीटस होता है। So the fetus occurs in the second half of pregnancy, therefore the recommendation for the additional need are given for the second half of pregnancy. Allowances for pregnancy for lactation are in addition to the normal needs of a woman as discussed earlier. तो जितना नॉर्मल नीड था उसका लेडी का, उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो पहले जब नॉर्मल वेट था उस टाइम का जो रिक्वायरमेंट था उसमें 30+, 15+ जो हम करते हैं वो ऐड होगा, बिकॉज हाइट सबका डिफरेंट होता है। RDI is the highest in the first 6 months of lactation because the mother feeds the infant with her milk. By the time the infant reaches 6 months of age, the mother milk supply decreases. We notice that the recommendation for this stage and after this are eventually reduced. So after 6 months, बच्चे का जब 6 महीना हो जाता है तो उसके बाद उसकी वीनिंग स्टार्ट की जाती है, मतलब बाहर का खाना स्टार्ट किया जाता है। तो उस टाइम उसको मदर मिल्क की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो मदर का सप्लाई भी कम होता है मिल्क का, तो फिर वहाँ पे न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो जाएगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट, फैट रिक्वायरमेंट तीनों कम होंगी। एंड लैक्टेशन में आयरन का कोई चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत होती है। लैक्टेशन में आयरन नहीं जाता है, जो भी जाता है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जाता है, तो लैक्टेशन में एडिशन करने का ज़रूरत नहीं है। जितना नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है उतना ही रहेगा। सो uses of RDI, recommended diet intake, words said to meet a particular need.
They have several important uses, like they can enable and government to predict food needs of the population. They help plan supplementary feeding. Supplementary feeding that means जो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है गवर्नमेंट स्कूलों में. These are called supplementary feeding programs for mother and children. They guide agriculture planning. जो किसानों को बताया जाता है किस तरह फार्मिंग करिए तो अच्छी फसल होगी एंड न्यूट्रिशन मेंटेन होगा. एंड दे डिसाइड पॉलिसी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड. So they help large catering establishments such as hostels, hospital to calculate food to be ordered for the intimates. हर जगह आरडीआई की जरूरत है इन सारे फील्ड्स में. आरडीआई पता होगा, आरडीए पता होगा, तभी ये चीजें हम कर सकते हैं. जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहाँ पे भी डाइटिशियंस की रिक्रूटमेंट होती है. दे हेल्प ऑर्गेनाइज फूड सप्लाई फॉर डिफेंस पर्सनल एक्सेट्रा. तो वहाँ पे भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. बैलेंस डाइट क्या है? द प्रोविजन ऑफ पैलेटेबल एंड एक्सेप्टेबल मील्स मस्ट बी द फर्स्ट कंसिडरेशन. Only within this framework can planning for good nutrition be effective. The balanced meal is one that provides adequate amount of protein and of all the minerals and vitamins as well as energy. This should also provide dietary fiber and should be limited in its fat, sugar and salt contents, particularly if these are likely to be supplied from other sources during the day. At least one balanced meal should be eaten every day. Most food contain a wide variety of common food, thus the simplest way to meet nutritional standard is to eat a varied diet containing a wide selection of different type of food. So some groups are there. So number one group is that सीरियल ग्रुप. ठीक है, हम जब डाइट मेन्यू प्लानिंग करते हैं तो जैसे हम ब्रेकफास्ट प्लान कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में हम सारे ग्रुप में से एक एक चीज जाना चाहिए, वो ध्यान रखते हैं. सो नंबर वन इज सीरियल और मिलेट ग्रुप. सो इसमें से वन आइटम शुड बी इन अ मील. So this group include preparation of rice, wheat, ज्वार, बाजरा, maize, ragi, and their products such as rava, सूजी जो बोलते हैं. तो इसमें से कुछ एक होना चाहिए. राइस फ्लेक्स, पोहा हो गया, सेवई, दलिया. These items should, one item from these things should be there in each meal. कई लोग क्या करते हैं, डिनर में सीरियल आइटम स्किप करते हैं, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड. In addition, these food can be valuable source of one of the B vitamins, thiamine, and the mineral iron, especially if the preparation is made from unrefined wheat flour. Chapatis made from whole wheat flour contain mixed times 6 times as much thiamine as bread made from the same amount. तो 6 टाइम जितना थायमीन ब्रेड में होगा उतना चपाती के एक पोर्शन में होगा. सो दैट इज रिकमेंडेड दैट हमेशा जो भी है होल फॉर्म में लेना है. एंड जो पारबॉइल्ड राइस होता है, जिसको बॉयल राइस भी लोग कहते हैं, जो थोड़ा पीले रंग का होता है, उसको फर्मेंट किया जाता है सेल करने से पहले. तो पारबॉइल्ड राइस या इसको उसना चावल भी कहते हैं, बंगाली में सिद्धो भात कहते हैं. तो
टू टाइप के राइस होते हैं, एक रॉ राइस, एक परबॉइल्ड राइस। तो परबॉइल्ड राइस जो होता है उसमें थायमिन कंटेंट ज़्यादा रहता है, और जो नॉन और जो पॉलिश्ड राइस होता है उसमें थायमिन कंटेंट कम होता है। देन साइज ऑफ वन सर्विंग, any preparation made from 25 gram of any cereal is counted as 1 unit serving of food from this group. तो अगर आप बोल रहे हैं एक सर्विंग ले लो, मतलब 25 ग्राम है। कहीं कहीं पे आपको मेन्यू में, रेस्टोरेंट में भी लिखा रहता है हाउ मेनी सर्विंग्स, तो वहाँ पे भी न्यूट्रिशनली दैट इज 25 ग्राम। अनाज के बारे में है तो दैट इज 25 ग्राम होगा। अगर किसी को 2 सर्विंग अलाउ कर रहे हैं, 3 सर्विंग अलाउ कर रहे हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 ऐसे होगा। आपका 30 40 ऐसे जनरली नहीं किया जाता। सो ऐसा इजियर होता है जो मेन्यू यूज कर रहे हैं, बिकॉज 25 ग्राम्स में अगर आप आटा अलाउ कर रहे हैं किसी को तो उसमें 1 रोटी होता है। अगर आप 50 अलाउ कर रहे हैं तो उसमें 2 रोटी होगा, तो 1.5 थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई रिकमेंड समटाइम्स इन स्पेशल केसेस, मगर इन जनरल जो हॉस्टल में, हॉस्पिटल्स में ऐसे में यूज करते हैं, तो इसमें हम सर्विंग हिसाब से लेते हैं, 25 50 देन 75 ऐसे लेते हैं। मगर इंडिविजुअल में आप +10 भी कर सकते हैं। इन दिस इक्वल ऑफ हाफ ऑफ कटोरी, दिस इज इक्वल टू हाफ कटोरी ऑफ कुक्ड राइस। तो मतलब अगर आप 25 ग्राम किसी को अलाउ कर रहे हैं तो एक आधी कटोरी कुक्ड राइस होगा। ये 25 ग्राम जो बोला गया है ये अनकुक्ड राइस है। ओके, 1 मीडियम चपाती होगा, 1 रोटी होगा, 2 to 3 पूरीज होगा। पूरीज क्यों ज्यादा, बिकॉज वो स्मॉल साइज कंसीडर की जाती है। हाफ ऑफ मीडियम भाकरी होगा, 2 slices ऑफ ब्रेड जो होता है दैट इज 25 ग्राम, 2 tablespoon ऑफ राइस फ्लेक्स, मतलब जो अगर आप किसी को पोहा बोल रहे हैं, जो चूड़ा बोलते हैं, तो राइस फ्लेक्स 2 tablespoon, जो बड़े राइस के चम्मच होते हैं। तो अगर आप बोले कि आपको हम 25 ग्राम अलाउ करें तो 2 चम्मच बड़े चम्मच से पोहा होगा। ओके, ये ड्राइड होगा, ड्राई अमाउंट मेजरमेंट किया जाता है हमेशा। और रेडी टू ईट सीरियल्स जो होते हैं, जो आप यूजली होता है, तो अगर आप बोल रहे हैं किसी को 25 ग्राम आप खा लीजिए, वो नहीं समझ रहा है, उसको वेट करना मुश्किल हो रहा है, तो आप चम्मच में बता सकते हैं कि 2 बड़े चम्मच आप यूजली ले लीजिए, तो वो आपका 25 ग्राम में आता है। ओके, नेक्स्ट इज सजेस्टेड नंबर ऑफ सर्विंग। ठीक है, एक सेडेंटरी पर्सन जो होता है, जो दिन भर बैठ के रहता है, जो आपके आसपास जो आप देखते हैं मोस्टली सेडेंटरी पर्सन ही देखते हैं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट होगा, इट इज सजेस्टेड टू इंक्लूड एट लीस्ट 6 सर्विंग फ्रॉम दिस ग्रुप। दिन भर का है ये, ठीक है। तो ये जो सीरियल की बात हो रही है, 6 सर्विंग, दैट मीन्स 25 into 2 that is 50, 150 grams per day. Okay, so a sedentary person is, it is suggested to include that at least 6 serving from this group. Those who are moderately active, थोड़ा ज़्यादा active हैं, like teacher and all, or are involved in heavy physical work such as load lifting, will need more serving from this group. If we pursue any hobbies or sports which involve intense physical work, like gym कर रहे हैं या कुछ गेम खेल रहे हैं like बैडमिंटन एंड ऑल, एज अ हॉबी, ना कि दिन भर वो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनको भी हम सेडेंटरी में कंसीडर करेंगे। एनी गेम्स लाइक बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश, रेगुलरली वी विल नीड सम सर्विंग ऑफ दिस ग्रुप, मोर सर्विंग। तो दिस इज 150 इज मिनिमम, उससे हम फिर सेडेंटरी में एड ऑन करेंगे। Teenagers need more serving from the group to meet their need of for growth.
बिकॉज उनको हाइट भी बढ़ानी है, तो एक एडल्ट जो अपनी हाइट अचीव कर चुका होता है उससे उनको ज़्यादा चाहिए होती है. Expected mothers in the later half of pregnancy need to serving more than their normal intake, while nursing mother may need 4 additional serving. तो अगर नॉर्मल में कोई मदर 150 ग्राम सीरियल खा रही थी पूरा दिन में, तो 4 सर्विंग और ऐड होगा, मतलब कि 100 ग्राम्स और उसमें ऐड होगा. सो दीज आर वेरी हेल्पफुल टू मेक मेन्यू प्लानिंग. तो इसको आप, दिस इज पेज नंबर 6 इन पेपर 2. तो इसको आप ज़रूर एक बार गो थ्रू करें, क्योंकि हर पेशेंट घर में वेइंग मशीन नहीं रख सकता, एंड हर पेशेंट इतना एफर्ट नहीं कर सकता, तो हम उनको इस तरह से काउंसिल कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही, एंड कुछ क्वेरीज हैं तो पूछे. एंड यहाँ पे जैसे मेंशन किया मैंने रोटीज एंड पूरी से कि 2 पूरी होती है एक रोटी के बराबर. तो ऐसा नहीं है कि उसकी कैलोरीज सेम होती है, पूरी की मच हायर होती है रोटी से. जस्ट वेट की बात हो रही है, इन सर्विंग की बात हो रही है कि 2 पूरी 1 रोटी के साइज के वेट के बराबर होती है. सो एंड भाकरी एंड ऑल, दीज आर ऑल रिच इन फैट. So these are not everyday meal. Puris are not everyday meal. हमेशा go for rotis.